का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। दुर्गापुर में हुई शर्मसार करने वाली घटना। शवों को जलाने के लिए 10 से 15,000 रुपए मांगे जाने का आरोप। धनबाद का वासीपुर फिर से हुआ रक्त रंजित। जमुरिया में वज्रपात से एक महिला की मौत। ऐसा लगता है मानवता अब और नहीं रही। लोगों और कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही तृष्णा है। वे केवल पैसे या सत्ता के लिए ही भूखे हैं। यह कुछ कंपनियों के लिए फिट बैठता है, कुछ सत्ता के भूखे नेताओं के लिए। वे जलते घाट में शवों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसी घटना कोकवन थाने के अंतर्गत दुर्गापुर के वीर भानपुर जलाने घाट में हुई। एक और जहां मृत्यु का जुलूस चल रहा है, वहीं दुर्गापुर के वीर भानपुर महाश्मशान में कोविड संक्रमित का शव लाने के बाद 10 से 15,000 रुपए मांग की जा रही है। आरोप है कि यह मांग कोविड संक्रमित का शव दाह करने वाली उद्धृत कंपनी द्वारा की जा रही है। इसका प्रमाण तब मिला जब दुर्गापुर के एक स्थानीय चैनल के पत्रकार के भाई की मृत्यु के बाद श्मशान में लाया गया तो उसके दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने को कहा गया। रुपए नहीं देने पर शव को गाड़ी से बाहर निकालना तो दूर, इसे जला भी नहीं पाएंगे, जिम्मेदारी प्राप्त कंपनी के कर्मचारियों ने कहा। दुर्गापुर के कोकोबेन थाने की पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस तुरंत मौके पर आई और उन्हें इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए चेतावनी दी। फिर भी लंबी बहस के बाद सुबह करीब 4 बजे शव का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि फिर भी उन्हें 4,000 रुपए देने पड़े। सभी वाकइयों को मोबाइल में समेट लिया गया है। मामले की सूचना दुर्गापुर के प्रमुख पुलिस अधिकारी सहित महकमा अधिकारी को दी गई है। मृतक के परिवार ने आज महकमा अधिकारी को लिखित शिकायत करेगा। दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती खुद कोविड आक्रांत होकर अस्पताल में भर्ती हैं। फोन पर मामले की जानकारी देने के बाद उन्होंने कहा कि दुर्गापुर को बदनाम करने के लिए जो मेयर परिषद शमशान की जिम्मेवारी में है, वो इस काले बाजार को रोकने का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वे कार्यालय नहीं आ रहे हैं और वे मामले को नहीं देख रहे हैं। स्थानीय पार्षद मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच की आवश्यकता जताई। आइए सुनते हैं कि प्रभावित परिवार के लोग क्या कहते हैं। तो তারপরে এখানে বীরভানপুর শ্মশানে যখন এসেছি আমরা, এখানে রীতিমতো আপনার অরাজকতা চলছে বলতে গেলে। মানে প্রথমে তো ধরুন গাড়ি যেখানে আমি অ্যাম্বুলেন্স বলেছিলাম সেখানে আপনার বিরাট টাকা চাইছিল। তারপর এখানে এসে বলছে আপনার ডুম বলছে যারা চাপাবে আর কি, হ্যাঁ প্রথমে বললো 15,000 টাকা লাগবে, 15,000 টাকা দিতে হবে, না আমরা করবো না, হাতে পায়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, তো অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে ওনারা কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না এবং চলে গেলেন আর কি। সেই জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তারপরে লাস্টে মানে কাকুতি মিনতি করে, হ্যাঁ এদিক ওদিক আপনার অনেক জায়গায় ফোন টোন করার পরে, হ্যাঁ 4,000 টাকা 4,500 টাকাতে হ্যাঁ দিয়ে কাজটা হয়েছে। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, ওদেরকে বললো কিন্তু ওরা অনড়, মানে পুলিশের কথাও মানেনি? পুলিশের কথাও মানেনি। মানে শেষ অবধি ওরা টাকা ডিমান্ড করেই গেল? শেষ অবধি টাকা ডিমান্ড করে গেছে, পুলিশ বলার পরে তারপরে গিয়ে 4,500 টাকা লাস্টে ডান হয়েছে। কাল রাতে কখন এসেছিলেন? রাত্রে হলে শ্মশানে যখন এসেছি 12টা বাজে। আর এখন কটা বাজে ভোরবেলা? এখন তো 5টা বাজে। 5টা বাজে, মানে সারা রাত এই ভোগান্তি হলো? সারা রাত এই ভোগান্তি হলো। মানে এটাতে কতটা আতঙ্কিত, কতটা আপনি মানে এটাতে মানে বিধ্বস্ত? প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত এবং অসহায় ফিল করছি। ধরুন আমার মতো তো ধরুন প্রচুর লোক এখন তো ধরুন মৃত্যু মিছিল চলছে, হ্যাঁ প্রচুর কোভিডের প্রচুর আপনার পেশেন্ট আসছেন এবং সবার সঙ্গেই একই রকম ব্যবহার তারা পাচ্ছেন, হ্যাঁ এবং পয়সার সাধ্য হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে ব্ল্যাকমেলিং করে পয়সা নিচ্ছে আর পেশেন্ট পার্টিদের কাছ থেকে। প্রশাসনের কাছে কিছু আবেদন রাখছেন? প্রশাসনকে বলবো, আবেদন করবো যে প্রশাসন যেন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন যেন। আপনার নাম? রঞ্জন মিত্র। আমি দুর্গাপুরের একটি স্থানীয় লোকাল চ্যানেলের সাংবাদিক চঞ্চল চৌধুরী। আমার মামাতো ভাই অদীপ মিত্র এমএমসির বাসিন্দা গতকাল কোভিডে মারা যায়।
এরপরে আমরা রাত্রিবেলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালেই মারা যায়। তারপরে আমরা ওখান থেকে বডি নিয়ে আমরা রাত 11:30টার সময় দুর্গাপুরে বীরভানপুর শ্মশানে পৌঁছাই। এরপর আমাদের যথারীতি লাইনের কুপন সবই কাটা হয়, কিন্তু তারপরে ডোমরা বলে এই বডি নামাতে গেলে এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে হচ্ছে চুল্লি অবধি, তার জন্য 15,000 টাকা দাবি করে। আমরা রিকোয়েস্ট করি, অনুরোধ করি যে এই টাকাটা কমানো হোক, আমরা দিতে রাজি আছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা রাজি হয় না। এরপরে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। প্রশাসনের কোকোবেন থানার আধিকারিক অসীমবাবু আসেন, ডোমদেরকে বোঝান, ধমকান, কিন্তু কোনোভাবেই ওরা সাময়িক রাজি হয়, ঠিক আছে দেখছি স্যার। এরপরে পরবর্তীকালে যখন আমাদের লাইন আসে তখন হচ্ছে 3:15-তে আমরা লাইন পাই। তখন ডোমরা আবার সেই একই ঘটনা শুরু করে যে টাকা না দিলে নামাবো না। অনেক কথা বলার পরে, দরদাম করার পরে 4,000 টাকায় রফা হয়। এরপরে ওরা দাহতে পৌঁছায়। এইটা করতে করতে 3:15 থেকে 4:30 বেজে যায়। মানে সেই সময় চুল্লির দুটি চুল্লি চলছে, তার মধ্যে একটি চুল্লি খালি পড়ে থাকে, পিছনে আরও কোভিড বডি পড়ে রয়েছে। ওরা দরদাম করেই যায়, লাস্টে 4,000 টাকায় রাজি হয়। আমরা 4,000 টাকা দিই ওদেরকে। তারপরে 4:30টার সময় ওরা বডি নামিয়ে চুল্লিতে চাপায়। আমি দুর্গাপুরের প্রশাসনকে বলছি যে ইমিডিয়েট আপনারা দয়া করে ব্যবস্থা নিন, কারণ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এদের কাছে হেনস্থা হচ্ছে। এদের একটা সিন্ডিকেট চলছে এখানে, হতে পারে মাথার উপর কে আছে আমরা জানি না, কিন্তু সিন্ডিকেট চলছে এবং এই জায়গাটা থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচান। একে কোভিড মহামারীর সময় যেখানে মানুষ বিপর্যস্ত, সেখানে বডি দাহ করার জন্য 15,000 টাকা নিচ্ছে, নামিয়ে শুধু চিতা অবধি নিয়ে যাবে। এরপরে মুখ দেখার জন্য যদি কেউ মুখাগ্নি করে তার জন্য আলাদা টাকা। তাই স্থানীয় প্রশাসনকে বলছি, মহকুমা শাসককে বলছি, ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নিন, কারণ এই आइए जानते हैं संबंधित अधिकारियों की टिप्पणी। এবং এই ব্যাপার ঘটা একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অলরেডি তদন্ত করতে বলেছি। যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে, যে ঘটিয়েছে তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং আমি সবাইকে বলেছি ক্লোজ নজর রাখতে, এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে। দাদাগিরি চলছে একদম, মানে রীতিমতন যারা বাড়ির লোক তাদেরকে হুমকি দিয়ে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে একটা বড় চক্র কাজ করছে। না, আমি তদন্ত করে দেখতে বলেছি যে যা চক্র আছে সমস্ত চক্র ভেঙে দেওয়া হবে। মানুষের এই রকম কঠিন সময়ে কোনো চক্রকে, কোনো রকম চক্র প্রশ্রয় পাবে না। সমস্ত রকম অ্যাকশন, যত রকমের আইনি ব্যবস্থা আছে সব নেওয়া হবে। যত রাত্রি বাড়ছে তত তাদের ডিমান্ড বাড়ছে। কোভিড পেশেন্টের আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কোভিড বডি যখন পোড়াতে যাচ্ছে তারা নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়ি ফিরছে বলে অভিযোগ ছিলই আগে, কিন্তু না, এই হ্যারাসমেন্ট একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি তদন্ত করে ব্যবস্থা নিচ্ছি। স্যার মানে নেই ওরকম নাম, কেউ কারো নাম নিচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট কেউ পোস্টেড বীরবানপুর শ্মশানে নেই, কিন্তু ওখানে যারা দায়িত্বে রয়েছে হিসেবে উপযুক্ত তথ্য দিলে আমি ব্যবস্থা নেব, তদন্ত করব। दूसरे संबंधित व्यक्तियों का बयान। যারা যাচ্ছে মৃতের পরিবারের কাছ থেকে, তারা বিপুল পরিমাণের একটা অঙ্কের টাকা চাইছে এবং অস্বস্তিতে পড়ছে সেই মৃতের পরিবার। আমাদের কাছে এই খবরটা এসে পৌঁছেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের পৌরসভা কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই ধরনের যারা, এটা ঠিক যে অনেক মৃতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, সপ্তাহ বেশি করতে হচ্ছে, কিন্তু তার মানে এই নয় এই সুযোগে বেশি অর্থ চাওয়া। এটার আমরা প্রতিকার নিশ্চয়ই করব। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। राज्य पुलिस में फिर फेरबदल, 7 IPS का तबादला। राज्य में नई सरकार बनने के बाद पुलिस महकमे में फिर एक बार फेरबदल किया गया। यह तीसरी बार है जब IPS अधिकारियों की अदला बदली हुई है। देवेंद्र प्रकाश सिंह को सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट से कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के बजाय उत्तर बंगाल का IG बनाया गया है। वहीं धृतिमान सरकार का तबादला भी रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर बुधवार को भारतीय मजदूर संघ की ओर से सांगतोरिया स्थित ECL अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में अस्पताल के नर्सों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण के बाद कैंडल प्रज्वलित कर किया गया। CMO IC शिवानी भट्टाचार्य, सिस्टर एवं सिस्टर प्रभारी मीनाक्षी राय, मौसमी चक्रवर्ती, चंदना वर्धन, शाश्वती चौधरी, रंजना भट्टाचार्य, रूना लाला सहित उपलब्ध चिकित्सक डॉक्टर TK डाकुआ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट अनंत कवि सहित अन्य सिस्टरों को फूल, कलम, सैनिटाइजर एवं मिठाई देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सिस्टर प्रभारी मीनाक्षी रॉय ने बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो शपथ हमने ली है उस शपथ के अनुसार हम काम कर सके। कहा कोविड को हम ओवरकम कर सके और लोगों को स्वस्थ कर सके, यही हमारा लक्ष्य है। इस मौके पर जयनाथ चौबे ने कहा कि हमारी नर्सें, डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना योद्धा के रूप में यह जानते हुए भी कि वह भी कोरोना के दौरान सेवा करने से हम सभी भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इसे भुलाकर जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। हम उनके हौसला अफजाई के लिए आए हैं। इधर मुख्यालय सचिव मृत्युंजय सिंह ने कहा कि इनकी सेवा के लिए इन्हें मेरा नमन। इनका समर्पण भाव इस कोविड लहर में अतुलनीय है। इस मौके पर भामस के प्रदेश सचिव जयनाथ चौबे, ECN मुख्यालय सचिव मृत्युंजय सिंह, उपाध्यक्ष असीम मुखर्जी, सहायक सचिव इंद्रजीत पासवान, सोदपुर एरिया सचिव दयाचंद नोनिया, महेंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो कोविड के पेशेंट के लिए, जो अन्य पेशेंट के लिए हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी जो फ्रंट लाइन में आकर के कोरोना योद्धा के रूप में अपना समय दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। दुर्गापुर इस्पात प्रकल्प अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित सेवानिवृत्त दिनेश चंद्र भौमिक ने बुधवार को अस्पताल में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें बीते सोमवार को कोरोना विभाग में भर्ती कराया गया था। वे दुर्गापुर इस्पात नगरी के B जोन के एडिशन के निवासी थे। दुर्गापुर नगर निगम के 10 नंबर वार्ड के स्थानीय पार्षद राजीव घोष ने कहा कि संभवतः आतंकित होकर ही उन्होंने आत्महत्या किया है। घटना को लेकर दुर्गापुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुंचे। आसनसोल और जामुरिया के कई लोगों ने ईद के मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोविड गाइडलाइनों को बनाए रखने के लिए कहा। वे अभिजीत घटक आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य हैं। तबस्सुम आरा आसनसोल नगर निगम की प्रशासक बोर्ड की सदस्य हैं। शेख सेंडर पूर्व बोरो कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं कि मिस्टर अभिजीत घटक क्या कहते हैं। सभी को ईद का मुबारकबाद देते हैं। ईद खुशी का ईद है और एक महीना का रमज़ान के बाद सभी कोई ईद के दिन खुशी मनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सभी कोई मिल के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी मिल के हम लोग ये खुशी का मौके पर सभी का साथ देते हुए ईद को और अच्छा से बनाएं और खुशी से बनाएं। लेकिन हम लोग को ये भी सोचना है कि अभी कोविड का जो महामारी चल रहा है, इससे हम लोगों को बचना है। तो ज़्यादा लोगों को एक जगह में जमायत नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर पे आप लोग मना सकते हैं, कम आदमी के साथ मना सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकार के जितने भी हमारे बंगाल का, पश्चिम बंगाल के सरकार का जो नियम है उनको मान के सभी को हम लोग ईद मनाएंगे और खुशी से ये दिन गुजारेंगे। आइए जानते हैं मिसेस तबस्सुम आरा के दृश्य। तमाम बिरादरीन इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। 30 रोजे रख के हम लोगों को ईद तोहफे में मिली है। आप सबों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में हम सब जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से हमें लड़ना है। हम तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि नमाज पढ़ने जाने से पहले आप घर से वजू करके जाएं।
नमाज अपना लेकर जाए, सैनिटाइजर करके जाए, नमाज पढ़ के आने तक फिर घर पे आप सैनिटाइजर करें, भीड़ भाड़ से बचे, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर बाहर निकले, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि भीड़ भाड़ से बचे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अंत में शेख सेंट्रल जामुरिया के पूर्व बुरो समिति के अध्यक्ष और टीएमसी नेता ईद की पूर्व संध्या पर बधाई, लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की सलाह देते हुए ईसीएल श्रीपुर के बनोरा वेस्ट ब्लॉक के पास कोयले के खदान में आग लग गई। ईसीएल श्रीपुर का वर्ष बनोरा वेस्ट ब्लॉक के खुले खदान के पास कोयले के एक स्टॉक में आग लग गई। कल रात से प्रबंधन अधिकारियों ने इसे लगभग 11 बजे नियंत्रण में ला दिया। पिछले कुछ समय से कोयले की बिक्री में कमी आई है और हम स्टॉक से बाहर हो गए हैं। यही वजह है कि हम कल से पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बारबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। वैसा कुछ नहीं है, ये गर्मी के दिन में छोटा मोटा स्टीम होते रहता है, इसलिए हम लोग रेगुलर पानी भी डालते रहते हैं। तो कोई क्षति हुआ है? कुछ क्षति नहीं हुआ। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। विधायक विधान उपाध्याय ने रूपनारायणपुर ITI कोविड सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सालनपुर ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन और विधायक विधान उपाध्याय की पहल के तहत रूपनारायणपुर ITI केंद्र में 21 बेड का कोविड सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। कोविड सेवा केंद्र का उद्घाटन बुधवार को बारबनी विधायक विधान उपाध्याय के साथ सालनपुर ब्लॉक के BDO अदिति बसु, सालनपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्माकर खासी, सह अध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद के कार्यवाह मोहम्मद अरमान और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भानु सिंह ने किया। নার্সরা রয়েছেন, ডাক্তারও এখান থেকে আমাদের পিঠাকের থেকে ডাক্তার যারা আছেন তারা 3-4 করে এখানে ভিজিট করে যাবেন বারবার। এখানে নার্সরাও থাকবেন। তাছাড়া পিন্টুর দায়িত্বে রয়েছে আমাদের। स्थानीय लोगों के अनुसार रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मोड़ इलाके में स्थित पंडित तालाब में बुधवार सुबह राम बगान इलाके के निवासी 45 वर्षीय सब्जी विक्रेता लक्ष्मण शर्मा कमल का फूल तोड़ने के क्रम में तालाब में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेशे से सब्जी विक्रेता लक्ष्मण शर्मा रोज की तरह आज भी नहाने के बाद तालाब से कमल का फूल तोड़ने गए थे, मगर तालाब की गहराई का सही अंदाजा न लगाने के कारण कमल के पौधों में वह फंस गए। जब स्थानीय लोगों ने दूर से उनको डूबते देखा तो फौरन लक्ष्मण शर्मा के परिवार और पड़ोसियों को खबर दी गई। बाद में पुलिस प्रशासन की सहायता से सबको बाहर निकाला गया। रानीगंज थाने के पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस ने आकर शव को अपनी हिफाजत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुरुलिया जिले के झालदा थाना के माठारी खमार अंचल में चुलाई शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर पुलिस ने भारी परिमाण में शराब बनाने वाले कच्चा माल पदार्थ को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर झाला थाना पुलिस ने लूसकुड़ी इलाके में चुलाई शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। हालांकि पुलिस के आने की खबर मिलते ही वहां रहे अवैध शराब कारोबारी भाग निकले। झाला थाना पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दिन वहां काफी मात्रा में चुलाई शराब बनाने की कच्ची सामग्री बरामद की गई, उसे नष्ट कर दिया गया। शराब बनाने के उपकरणों को जब्त कर लिया गया। हालांकि अभी तक घटना में किसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के अनुसार यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। जामुरिया औद्योगिक क्षेत्र के इकड़ा इलाके में बने गगन फेरोटेक इस्पात कारखाना के सामने स्थानीय हरमनडांगा आदिवासी पाड़ा के लोगों ने कारखाने के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और आवाजाही रोक दी। इस संदर्भ में स्थानीय निवासी विजय हादसा ने कहा कि कारखाना प्रबंधन अपने कारखानों से निकले गर्म राख और कचरे को इलाके में ही कहीं भी फेंक देता है। उन्होंने कहा कि कारखाना द्वारा इस तरह इधर उधर राख फेंक देने से लोगों को परेशानी होती है।
अभी कुछ ही दिनों पहले हरमाडांगा गांव के 2 युवक लखीसर मुर्मू लखी नारायण हादसा पैर फिसलकर गर्म राख में गिर गए थे, जिससे उनके पैर बुरी तरह से झुलस गए थे। वह आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती हैं, मगर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी उनकी शारीरिक हालत में सुधार नहीं हुआ है। उनकी प्रबंधन से मांग थी कि कारखाना प्रबंधन जब तक वह ठीक नहीं होते हैं उनका खर्च वहन करे और जब वह ठीक हो जाए तो उनके रोजगार की व्यवस्था करे। और इसके बारे में हम लोग थाना में खबर भी दिए थे, जीडी किए थे, लेकिन थाना प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं मिला। हम लोग के पास और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता हम लोग सोचा नहीं, इसलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। राज्य के विधि एवं लोक निर्माण कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मलय घटक को सम्मानित करने का सिलसिला रात तक जारी रहा। इसी क्रम में कल रात पांडेश्वर के नवनिर्वाचित तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती आसनसोल आए और मलय घटक के घर में जाकर उनको सम्मानित किया। मलय घटक ने भी उनको सम्मानित किया तथा जीत की बधाई दी। दोनों के बीच अलग से कुछ बातचीत भी हुई। उसके बाद जब नरेंद्र चक्रवर्ती बाहर निकले तो माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अफरोज के ऑफिस भी गए। वहां पर सैयद अफरोज ने नरेंद्र दा को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस बार माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए लोगों ने काफी साथ दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सैयद अफरोज ने जो टीम बनाई है वह काफी एक्टिव है। उन्होंने सैयद अफरोज को पांडेश्वर में जाकर प्रचार करने के लिए साथ देने के लिए उनको धन्यवाद दिया। इस मौके पर उपस्थित थे वसीम राजा, सैयद राशिद, मुकेश झा, चांद, माधव दास, दानिश, अमन, मोनू, रियाज, राजू इत्यादि। शिल्पांचल में कोरोना संकट में लोगों की मदद करने के लिए विभिन्न स्तर से लोग आगे आ रहे हैं। आसनसोल के समाज सेवी सह व्यवसायी अधीर गुप्ता ने कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क भोजन कराने की घोषणा की है। गुरुवार से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि उषा ग्राम में उनके रेस्टोरेंट सेकंड वाइफ की ओर से कोरोना प्रभावित लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि कोई भूखा न रहे। जिन्हें भोजन की आवश्यकता होगी वह इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 7001752719, दूसरा 8250017873, तीसरा 9851635322। धनबाद का वासीपुर फिर से हुआ रक्त रंजित। ब्लू रंग के पल्सर मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात अपराधियों ने बीच सड़क पर जमीन कारोबारी व मदर हलीमा स्कूल के संचालक के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि अपराधी बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए। फिलहाल वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। वहीं ईद की तैयारियों के बीच अंजाम दी गई। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नया बाजार निवासी जमीन कारोबारी मोहम्मद अशरफ उल हसन अलियास लाला खान बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे अपनी बाइक से जबार मस्जिद पार कर रहे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक से आए अपराधियों ने उनके सिर पर पिस्टल सटाकर गोली दाग दी। गोली लगते ही लाला खान अपनी बाइक समेत वहीं सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक अपराधी बड़ी ही तेजी से मौके से फरार हो चुके थे। मौके पर जुटे लोगों ने लाला खान को तत्काल सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी धनबाद गया रेल लाइन की तरफ भागे थे। पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से एक काला और नीले रंग का पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस को उसी जगह से काले रंग का 100 मोटरसाइकिल बरामद भी मिला है। पुलिस अंदेशा जता रही है कि अपराधी इसी मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम देने आए होंगे और वारदात को अंजाम देने के बाद रेलवे लाइन के पास दोनों मोटरसाइकिल को छोड़ फरार हो गए होंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने में जुटी है। जामुरिया में वज्रपात से एक महिला की मौत। जामुरिया थाना अंतर्गत बरूल गांव निवासी मालती गोराई 37 वर्षीय बुधवार दोपहर खेत से घर लौटते समय वज्रपात की चपेट में आ गई। मौके पर महिला झुलस कर एवं बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे आसनसोल जिला अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना को लेकर इलाके में शोक का माहौल बन गया है। आज का सुविचार, मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों इच्छा, भावना और ज्ञान से प्रवाहित होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।